Hello, assalamu alaikum, my dear students. It's me once again, JB sir, the English Maven, and I am presenting before you my second lecture, second video, and it will be about important poems. As you can see, it's written here three important poems for JK Bose students and CBSE students in one shot. And before starting the lecture start करने से पहले I am very thankful to my students that they have liked my previous video, previous lecture, and please keep liking my videos, keep commenting on my videos. ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कमेंट करें मेरे वीडियो पे, लाइक करें मेरे वीडियो पे, because it gives me confidence, it gives me energy, क्योंकि हर दिन हर एक नए वीडियो में मैं आपको बेस्ट देता रहूंगा. So let's start without wasting your time and my time. The first poem that we are going to discuss is, it's written here, Keeping Quiet. Very important poem from examination point of view. And this poem, as you can see, is written by Pablo Neruda. Let's discuss the theme of the poem first. As I have written here, theme is, this poem is written by Pablo Neruda. Just remember the name of the author. Author का नाम आप याद रखिए. And this poem emphasizes the importance of self-introspection. Self-introspection means self-examination. अपने अंदर देखना, अपने दिल के अंदर झांकना, ओके, एंड साइलेंस. तो याद रखिए पहला पॉइंट जो आपको इस पोम के बारे में याद रखना है, दैट द थीम ऑफ दिस पोम इज self introspection and silence. Self introspection means self examination. Pablo Neruda's poem Keeping Quiet highlights the importance of sustaining peace and silence. किस बारे में ये पोइम बात करती है? It talks about maintaining silence in the universe, on the earth planet, and maintaining peace. He emphasizes being peaceful and non-harmful to humans, animals, and the environment. Okay? Stress किस पे देता है? Focus किस पे करता है? Author is saying that we should respect, we should live in peace, and we should not harm humans, we should not harm animals, and we should live peacefully in the environment. He claims that to sustain peace को कायम करने के लिए and harmony, we must take time to pause and reflect. तो ये क्या कह रहा है हमसे? Just keep a silence of 12 seconds और 1 मिनट, ताकि आपको समझ में आए मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, या जो मेरा आज दिन गुजरा है मैंने अच्छे से गुजारा, मैंने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, या मेरा दिन मत जाया ही हो गया. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मींस सेल्फ एग्जामिनेशन. एंड हाउ यू कैन अचीव दिस? आप कैसे इसको अचीव कर सकते हो? बाय मेंटेनिंग साइलेंस फॉर 1 मिनट, for 12 seconds, for 2 minutes. This is the theme. Now, let's discuss the poem in detail. First stanza, पहला stanza है, okay? Now we will count to 12. We means the audience, the readers, along with the author. Okay, readers here. जो ये poem पढ़ रहे हैं. Now we will count to 12 and we will all keep still. चलो अब हम 12 तक count करते हैं. Let's count up to 12. And we will all keep still. Still means हम एक ही जगह रहेंगे. We want a silence of 12 seconds. We want a silence of 2 minutes. We want a silence of either 4 minutes or 5 minutes. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. And पहली बार planet earth पे हम किसी language में बात नहीं करेंगे. After maintaining silence, okay, we have to go for self-introspection. We have to go for silence. We have to go for self-examination. Silence के बाद चुप जब हमने की, थोड़ा बहुत हमारे दिमाग को रेस्ट मिलता है. नहीं जी, मेरी एक्शंस आज दिन भर गलत थी, मैंने उसके साथ गलत किया, मेरा दिन जो है वो आज जाया हो गया. ओके, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. कम से कम 1 सेकेंड के लिए तो हमें रुकना है. लेट्स हॉल्ट फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए रुको. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और अपनी जो आर्म्स है, हमारे जो बाजू है, हम इनको भी मूव नहीं करेंगे. सिंपल. दिस पोएम इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. यहां से मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है, ठीक है? जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी, इट्स रिटन हियर. ओके, तो पहला स्टेंजा क्या कहता है? फर्स्ट स्टेंजा टॉक्स अबाउट दैट वी शुड काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल. स्टिल मींस मोशनलेस. हम थोड़ा बहुत रेस्ट देंगे अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, so that हमें समझ में आए हमें आगे क्या करना है. ओके, स्टेंजा सेकंड is, it would be an exotic movement. Exotic means unusual, different. It's written here, exotic, different. It would be an exotic movement.
Now, after maintaining silence for 1 minute, for 12 seconds, for 2 minutes, वो कैसा movement होगा? That movement will be different. Without rush, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी. Without engines, even he suggests us that automobiles should stop working for 1 minute, for 2 minutes. Machinery जो है वो भी उसको भी halt पे लाए हम. Machines को भी हम बंद करें कुछ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए. We would all be together, and at that time, आफ्टर डूइंग दिस, ये करने से हम इकट्ठे हो जाएंगे. वी विल बी टुगेदर, वी विल बी यूनाइटेड. ओके, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. और जो फिशरमैन है, जो मछली जाते हैं पकड़ने समंदर के लिए, ओके, समंदर में, वो भी उस टाइम पे अपना काम जो है रोक के रखेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ओके, और जो इंसान सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, नमक कलेक्ट करते हैं, वो भी अपने वुंडेड हार्ट्स को देखेंगे कि मेरे हाथों को ये क्या हुआ है. Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. तो लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है. He requests everyone. फिशरमैन्स को ये रिक्वेस्ट करता है, ओके, लेबर्स को ये रिक्वेस्ट करता है. एवरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही रिक्वेस्ट्स देम, प्लीज मेंटेन अ साइलेंस ऑफ 2 मिनट्स, मेंटेन अ साइलेंस ऑफ 12 seconds, maintain a silence of 5 minutes, ताकि समझ में आए हमने आज तक किया क्या है लाइफ. या बिफोर गोइंग टू बेड, बेड से जाने से पहले, सोने से पहले हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी करना चाहिए कि नहीं, मेरा आज का जो दिन है वो मत जाया गया, मैंने मत किसी को हर्ट किया, या मेरे एक्शंस की वजह से मैंने मत किसी का दिल दुखाया है. ओके, फॉर दिस ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ द मैन who gathers salt whose hands are hurt. Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. Okay, fisherman की example यहाँ पे दे रहा है, उनको suggest कर रहा है कि नहीं, you should stop your work for 5 minutes, for 2 minutes, ताकि उनको भी समझ में आए, ठीक है, कि क्या वो materialistics दुनिया के आगे ज्यादा जा रहे हैं, पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं. They are moving towards materialistic things more. Clear? Now third stanza, those who prepare green wars. Green wars का मतलब है यहाँ पे biological wars. Okay, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ लड़ रहा है, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. और विक्ट्री तो आएगी, लेकिन उस विक्ट्री के बाद कोई सर्वाइवर नहीं होगा, कोई इस दुनिया में बचेगा नहीं. ठीक है, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. और राइटर हमसे ये कह रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको 5 मिनट की साइलेंस, 12 सेकेंड की साइलेंस, सेल्फ एग्जामिनेशन बोल रहा हूं करने को, he doesn't mean that we should go for total inactivity. नहीं, हमें सारा कुछ अपना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए. No, silence. He just wants us to maintain silence of 2 minutes, a self-introspection of 2 minutes or 12 seconds. Okay, I want no truck with death. Important line exam में आपको आ सकती है. I want no truck with death. No truck with death means that the poet does not believe in inactivity. ये यहाँ पे इसका मतलब ये है, मैंने आपको हमेशा के लिए अपने काम जो है, आपका जो काम है वो छोड़ने के लिए नहीं कहा है. Okay, life is an ongoing process and so he does not want to associate it with death or bring it to dead end. तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप डेथ का सामना करो, you should face death. No, rather he suggests us that we should maintain silence. हमें silence रखनी चाहिए. We should maintain peace and we should live in harmony with each other. Clear? Fourth stanza, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पे आप इस fourth stanza का meaning देख सकते हो. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. हर कोई इंसान, हर कोई ह्यूमन बीइंग काम करता है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए. They are driven by the target of survival, and it's the survival of the fittest and the threat of death. So they are in a mad rush
और टारगेट हासिल करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए हम भागते रहते हैं, मैड रश, वी आर लिविंग इन अ मैड रश, वी आर रनिंग आफ्टर अ मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर वर्क्स. ही सेज दैट परहैप्स इफ दे पॉज फॉर अ व्हाइल, और इन लोगों को भी ये सजेस्ट करता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत ब्रेक ली, टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, ओके, दे कैन अप्रिशिएट, they can appreciate their achievements and their lives would become happier. Now, after taking a break of 5 minutes, of 12 seconds, after going self-examination, self-introspection, उनको समझ में आएगा कि नहीं, where I am lacking, मैंने इसके साथ मत गलत किया है, या जो मेरे actions है वो मत गलत है. The poet clarifies that his wish should not mean total inactivity. यहां पे भी ये क्लियर करना चाहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है You should stop all your works forever. आपको अपना काम जो है वो हमेशा के लिए रोकना है. The poet only desires to interrupt the violent, cruel, and sad activities taking place all over the world for a few moments and let individuals introspect their actions. तो कहां पे ये ब्रेक लगाना चाहता है? कहां पे? ठीक है, violent, cruel actions जो किसी ने किया है and sad activities taking place all over the world for a few moments and let individuals introspect their actions. और जिन्होंने किसी के साथ गलत किया है उन इंडिविजुअल्स को ये सजेस्ट करता है कि आप थोड़ा बहुत ब्रेक दे दो, आप थोड़ा बहुत झांको, अपने दिल के अंदर झांक लो दैट कि आपने किसी के साथ गलत किया है. He suggests that by keeping quiet, again the title of the poem, चुप रहने से we will be able to understand the true purpose of our life. And once we went silent for 2 minutes, for 5 minutes, after doing self introspection, after keeping silence, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, मेरा एम ये नहीं होना चाहिए. I should not be after materialistic things. I should not hurt someone's feelings. मुझे एक अच्छा एम होना चाहिए लाइफ में. And now last stanza. Perhaps the earth can teach us. The earth here means the mother earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12. And फिर से he is giving stress on this thing. I will means your narrator. I is your narrator. I is the author himself. I will count up 12. 12 can be 12 seconds. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बोला, seconds बोला, minutes बोला, 12 minutes के लिए, 5 minutes के लिए. I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. And once I will go, you will keep quiet for those 12 seconds, for that 1 minute or for those 5 minutes. Clear? So this is the first poem. Now poem is over. मैंने आपको पैराफ्रेज भी करके दिया. And दो ही बातें आपको याद रखनी है. Two things you have to remember. That is, this poem talks about self-introspection. Self-introspection means self-examination and silence. And we should live in harmony with each other. हमें एक दूसरे के साथ हमेशा peace maintain करना चाहिए, खुश रहना चाहिए. We should not hurt someone's feelings. Okay? So this is the gist of the first poem. Now second poem, you can see second poem is My Mother at 66, and this poem is written by Kamala Das, Indian poetess, okay, a well-known poetess of India. And what can be the possible themes? Possible themes क्या है इस poem में? First, fear of losing someone you love. You may have lost your dear ones. उसका डर है आपको. Okay. Second important theme, aging. Everyone gets old. बुढ़ापे की तरफ हर कोई जा रहा है. आपको डर है, after old age I will die. Yeah, your dear ones are going to die. Third theme, that is strong connection between mother and child. तीसरी theme ये भी है कि ये this poem shows a connection between you and between your parents. Okay. Fourth theme, time passes quickly. Very important. और वक्त जो है वो ऐसे निकलता है, पता ही नहीं चलता है वक्त कैसे निकल गया. फिफ्थ, डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग रियलिटी. या तो आप ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हो दैट आई हैव लॉस्ट माय डियर वंस, दैट माय फादर इज नो मोर विद मी, या आप इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हो दैट आफ्टर बिकमिंग ओल्ड माय पेरेंट्स आर गोइंग टू डाई. ओके, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ. सिक्स्थ, पेन ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम लव्ड वंस. या ये पेन है आपको दैट योर पेरेंट्स दे आर लिविंग इन देयर ओन होम, वो अपने घर में रह रहे हैं, एंड यू आर लिविंग अब्रॉड, यू आर नॉट एबल टू सी देम कंटिन्यूअसली. लास्ट थीम, डिफरेंस बिटवीन बीइंग यंग एंड ओल्ड. एंड दिस पोएम टॉक्स अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग एंड ओल्ड. यंग जनरेशन की थिंकिंग क्या होती है, एंड बूढ़ा जो है वो कैसे सोचता है बुढ़ापे में.
These are the possible themes. ये कुछ themes है जो इस poem में writer ने, author ने discuss की है. Now let's see the text. Lines 1 to 6. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me. Okay, doze means a feeling of dizziness, open-mouthed. उसका मुंह खुला हुआ है. Face ashen like that of a corpse. और मेरी mother का जो face है वो एक dead body की तरह है. तो यहां पे ये क्या है, यहां पे सिमिली इस्तेमाल हुआ है. एंड रियलाइज इट विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. एंड मुझे ये ख्याल आया कि मेरी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है. डोज यू कैन सी इट्स ए लाइट स्लीप. हर फेस ashen like that of a corpse means the face of her mother is pale. ठीक है. एंड डल लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी. इसका पैराफ्रेज क्या है? द पोइट वाज ड्राइविंग विद हर मदर टू कोचिन एयरपोर्ट. पोइट जो है, ऑथर जो है, नरेटर जो है, वो अपनी मां के साथ जा रहा है. ओके, शी इज गोइंग विद हर मदर ओके टू द एयरपोर्ट, टू द कोचिन एयरपोर्ट. हर मदर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर. इसकी मां जो है इसके साथ बैठी है. द रनिंग ऑफ द कार मेड हर डोज ऑफ ओपन माउथ. व्हेन द पोइट लुक्ड एट हर शी रियलाइज्ड दैट हर मदर्स फेस वाज पेल लाइक ए डेड बॉडी. एंड जब नरेटर ने, ऑथर ने अपनी मां की तरफ देखा, शी फेल्ट दैट मेरी मां जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है. शी इज बिहेविंग लाइक ए डेड बॉडी. दिस पेनफुल थॉट मेड हर रियलाइज दैट शी लुक्ड एज ओल्ड एज शी वाज ए 66 ईयर ओल्ड वुमन. तो इसीलिए इसको ये ख्याल आया कि मेरी मां जो है शी इज लाइक ए 66 ईयर ओल्ड वुमन. That's why the title is My Mother at 66. But this realization hurt the poetess so much that she put that thought away for a while. तो ये thought दूर करने के लिए राइटर जो है, नरेटर जो है, पोइटर जो है, वो बाहर की तरफ देख रही है. Line 6 to 12 and looked out at young trees sprinting. तो वो बुरा ख्याल दूर करने के लिए I looked out at young trees. गाड़ी में है ये. They are both in a cab. कार में है ओके. और ये ख्याल दूर करने के लिए नरेटर is looking outside the window of the car. The merry children means happy children spilling out of their homes. Spilling here means coming out of their homes but after the airport security check. लेकिन जब ये अब एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए, जब चेकिंग होने वाली है, standing a few yards away I looked again at her. तो मैं यहां पे हूं, एयरपोर्ट के अंदर हूं, मेरी मां बाहर है. There is a distance of few meters. Okay, मैंने फिर से अपनी मां की तरफ देखा. As a late winter's moon. इस बार ये नरेटर जो है, पोइटर जो है, वो अपनी मां को किसके साथ कंपेयर कर रही है? विंटर्स मून के साथ. जैसे विंटर में मून निकलता है, तो यहां पे ये सिमिली है फिर से. ओके, सिमिली मींस कंपैरिजन बाय द यूज ऑफ लाइक और एज. तो इसका पैराफ्रेज हम देखेंगे. In order to divert her attention from her ailing mother, the poetess looked out of the vehicle. वो attention divert करने के लिए poetess ने vehicle के बाहर देखा और young trees and happy children coming out of their homes. और trees है यहाँ वहां पे, बाहर trees है रोड पे, and छोटे छोटे बच्चे जो है वो बाहर आ रहे हैं. When they reached the airport, the poet went to the airport security check, and finally जब वो airport पहुंचे, after the physical separation from her mother, and now there is a physical separation taking place between them. Okay, after the security check at the airport, she looked back at her mother. तो नरेटर ने फिर से ऐसे अपनी मां की तरफ देखा. And again saw her pale and colorless face. फिर से इसने अपनी मां की फेस की तरफ देखा. When she compared to a late winter's moon. और इसको क्या लगा? मेरी मां का जो फेस है, it's like a late winter's moon. ठीक है. तो she is comparing the face of her mother with late winter moon. Last lines 12 to 15, last lines as I have written it, and felt that old familiar ache. और वो पेन मुझे फिर से फील हुई. My childhood fear, okay, मेरे बचपन का डर. But all I said was see you soon, अम्मा. लेकिन जाते जाते मैंने इसको क्या कहा? जाते जाते मैंने इसको होप दी. All I said was see you soon, अम्मा. All I did was smile, smile and smile. और जाते जाते मैंने इसकी तरह स्माइल किया. ये जो लास्ट की दो लाइंस है,
है या लास्ट लाइन जो है, इट शोज दैट होप अब भी है नरेटर में, दैट शी इज गोइंग टू सी हर मदर आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स। ये माँ को ये स्माइल जो है, जो नरेटर अपनी माँ की तरफ देती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें उम्मीद जो है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ओके, नाउ पोएम इज ओवर, पैराफ्रेजिंग तो मैंने कर दी। नाउ यू कैन सी सम इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा इसमें इस्तेमाल हुआ है? पहला जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज सिमिली, SIMILE, ओके, या LI। सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, व्हेन यू कंपेयर वन थिंग विद अनदर थिंग बाय द यूज ऑफ द वर्ड लाइक और एज। तो यहां पे पहला सिमिली क्या है? द पोएटस मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून यूजिंग एज पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो जो ये लाइन आपने देखी ना, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहां पे नरेटर की मां जो है किसके साथ कंपेयर की गई है? विंटर मून के साथ कंपेयर की गई है। ओके, दूसरी सिमिली इसमें क्या है? कंपेयर टू दैट ऑफ ए कॉप्स यूजिंग हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मींस डेड बॉडी। तो दूसरी सिमिली इसमें इस्तेमाल हुई है, या नरेटर को लगता है दैट माय मदर इज लाइक ए कॉप्स। ओके, इमेजरी इसमें इस्तेमाल हुई है, द डिस्क्रिप्शन अबाउट चिल्ड्रन। इमेजरी बच्चों की है जो सड़क पे खेल रहे होते हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज इज गिवन, ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, the trees are said to be sprinting, sprinting here means running, trees sprinting, the merry children spilling, ये personification इस्तेमाल हुई है इसमें। next is contrast, फर्क दिखाया गया है हमें, the difference between poetess mother की thinking and the children is shown by using the word old and young। तो ये कंट्रास्ट है। सिंबोलिज्म इसमें यूज हुआ, विंटर्स मून इज ए सिंबल ऑफ डिके या डेथ का ये सिंबल है। ठीक है, लास्ट repetition, the word smile has been used thrice, all I did was smile, smile, smile। तो repetition इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो please my dear students remember one thing in mind, some important poetic device। पहले simile इस्तेमाल हुआ है, simile 1, simile 2। दूसरी imagery है इस्तेमाल, तीसरी personification इस्तेमाल हुई है, fourth is contrast, fifth is symbolism, and last is repetition, that is all I did was smile and smile and smile। Now next, the third poem, last poem, okay, जो हम discuss करेंगे, and again a very important poem। The title of the poem is Aunt Jennifer's Tigers, and this poem is written by Adrienne Rich, a well-known author, a well-known poetess। Okay, now theme क्या है? The central theme of Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich is how the power of the patriarchy, patriarchy here means male dominated society, कि मेल जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं अपनी वाइव्स को, या मेल जो है वो कैसे वुमेन को ट्रीट करते हैं, कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडीज, बॉडी पे तो ये कंट्रोल करते हैं, बट यू कैन नॉट कंट्रोल देयर माइंड्स, आप उनके माइंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। द poem makes this point by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। तो यहां पे कंट्रास्ट दिखाया गया है। नरेटर बोल रहा है, मेन कैरेक्टर जो है इस poem का Aunt Jennifer है, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग समथिंग, वो कुछ बना रही है, वो कुछ बुन रही है। ठीक है, क्या इमेज बना रही है? वो टाइगर्स की इमेज बना रही है। ओके, शी इज निटिंग समथिंग। ओके, तो ये कंपैरिजन दिखाया गया है, ये कंट्रास्ट दिखाया गया है। नाउ सी फर्स्ट स्टेंजा, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric satin। तो Aunt Jennifer को दिखाया गया है, ओके, शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरिंग वर्क, वो कुछ एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही है। ठीक है, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, ठीक है, टोपैज मींस इट्स अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। प्रांस का मतलब क्या है? प्रांस हियर मींस वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स, हियर एन एनिमल दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। स्लीक मींस स्मूथ, स्मूथ मूवमेंट ऑफ टाइगर। शिवल्रिक हियर मींस ब्रेव।
तो आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स की इमेज जो है वो बना रही है, ठीक है, वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही है एंड इस वर्क के साथ साथ शी इज मेकिंग द पिक्चर, शी इज मेकिंग द इमेज ऑफ द टाइगर्स। लेकिन वो टाइगर्स क्या है, दे आर ब्रेव, दे आर शिवलरिक, वो बहादुर है, वो आंट जेनिफर की तरह कमजोर नहीं है, सबमिसिव नहीं है। ओके, तो पहले स्टैंजा में हमें कंट्रास्ट दिखाया गया बिटवीन आंट जेनिफर एंड द टाइगर्स विच शी इज मेकिंग। Second stanza, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer के जो फिंगर जो है वो फ्लटर कर रहे हैं, दे आर trembling, जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही है ये, ठीक है, वूल का कपड़ा ये इस्तेमाल कर रही है, बट हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल बिकॉज ऑफ फेयर, जो इसको डर है अपने हस्बैंड का, दैट माई हस्बैंड विल कम, ही इज गोइंग टू रिब्यूक मी, ही इज गोइंग टू स्कॉल्ड मी, शी इज नॉट एबल टू पुल द आइवरी नीडल वेरी प्रॉपर, द मैसिव वेट ऑफ uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Okay, weight of uncle's wedding band, uncle's wedding band here means ring, जो इसको अपने हस्बैंड ने वो रिंग पहनाई है, तो ये एक बर्डन है आंट जेनिफर में, that she is mastered, she is controlled by her husband. Explanation here, the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. She says that while she is doing embroidery, her fingers are quivering. Quivering means जब ये embroidery का work कर रही है लेकिन इसके fingers जो है वो shake कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं with fear of her husband. Her husband does not approve of her hobby of embroidery. क्यों? क्योंकि इसके हस्बैंड को इसका ये काम, इसका ये हॉबी पसंद नहीं है. Therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. It has become difficult for her to pull her needle up and down. Then she describes the wedding ring. Wedding ring means जो अंगूठी इसने पहनी है was given by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day. She says that it's a kind of burden. ये wedding ring जो है ये अब भी इस पे एक बर्डन है फॉर हर टू वेयर दिस रिंग. शी हैज बीन टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड सो मच दैट द वेडिंग रिंग व्हिच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हिम सीम्स लाइक बर्डन टू हर. ये वेडिंग रिंग एक अच्छा गिफ्ट हो सकता था इसके लिए, लेकिन प्रेजेंट स्टेट में इसको क्या लग रहा है, ये मेरे लिए बर्डन है. ओके, शी हैज फेस्ड सो मेनी डिफिकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ दैट द लिटिल रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ हैवी बैंड on her trembling fingers. This means that the ring is associated with some bad experiences in the form of the torture. तो ये रिंग हमें बताता है, ऑन जेनिफर को रिमाइंड कराता है कि you are facing torture. Okay, she has faced it because of her husband's dominating behavior. इससे हमें पता चलता है इसका हस्बैंड जो है इस पे टॉर्चर करता है, इसके हस्बैंड का एक डोमिनेटिंग बिहेवियर है. From third stanza and last stanza, when aunt is dead, जब aunt Jennifer जो है when she will die, okay, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. यानी कि मरने के बाद भी इसको सुकून नहीं है, मरने के बाद भी she has to follow some protocols of her husband's. Okay, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. लेकिन जो tigers इसने वो स्क्रीन पे, इसने वो मतलब इमेज पे बनाया है, लेकिन वो डिफरेंट है, वो बहादुर है, वो डांस कर रहे हैं, वो प्राउड है अपने आप पे, वो किसी से डरते नहीं है. ऑर्डियल्स हियर मींस अनप्लेजेंट और पेनफुल एक्सपीरियंस, मास्टर्ड मींस कंट्रोल्ड बाय, पैनल मींस फ्लैट बोर्ड. ओके, यानी कि मरने के बाद भी आंट जेनिफर को जो है वो सुकून नहीं मिलेगा. द पॉइंट सेज दैट नो वन कैन इजीली सेंस आंट्स डिजायर फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस थ्रू हर डिजाइन ऑफ टाइगर्स. फर्दर शी सेज दैट इट इज नॉट possible for aunt to achieve this freedom during her lifetime. जीते जी तो इसको मतलब आजादी नहीं मिल सकती है. She will attain it only after her death. लेकिन मरने के बाद इसको मिल सकती है. But here also the irony of her life is that still she will be tied with the shackles in the form of her husband's wedding ring. लेकिन जो इसने वो wedding ring पहना होगा मरने के बाद भी, इसको समझ में आया मरने के बाद भी मैं आजाद नहीं हूँ. The ring was the sole proof of the tortures which she had faced from her husband. On the other hand, there are the tigers designed by Aunt Jennifer, which will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth. लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे, दूसरे साइड से Aunt Jennifer के टाइगर्स है, वो बहादुर है, they are chivalric,
दे आर ब्रेव, दे आर प्राउड, एंड वो किसी से डरते नहीं है। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम JB सर, द इंग्लिश मैन। ओके, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको एक ही शॉट में तीनों पॉम्स दे दी, एंड दीज आर वेरी 3 इंपॉर्टेंट पॉम्स। प्लीज 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 गो थ्रू दिस वीडियो, एंड वीडियो आप पहले से ताकि आखिर तक पूरा देखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई विल बी अवेलेबल अगेन in my next video. See you soon. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.